Hello and welcome to the No Filter Cricket Show. With me is my friend CS Luthra. We will take you this time over about the next half hour on the way the BCCI has awarded contracts to certain players. Some have been demoted, some have been promoted, and some have been completely axed. So, in my mind's eye, those who have been axed and those who have been demoted, there is a much greater story behind, and we will talk about the mechanics of it all. How, on what basis are certain decisions taken, and it's a pretty interesting exercise. So, before I go over to CS, just let me run you over some of the basic milestones. So, 26 players have been named in the annual contracts list, and it has been divided into four grades: A plus, which is the creme de la creme, A, B, and C. Now, players in the grade A plus category, they fall in the pay bracket of 7 crores annually. Grade A is 5 crores, and 3 crores for grade B, and 1 crore for grade C. Now, the biggest gainers so far have been Ravindra Jadeja, who has been promoted to grade A. Hardik Pandya has been promoted from grade C to A. Ravindra Jadeja has gone to A plus. Hardik Pandya has gone from grade C to A. Akshar Patel has gone from B to A. Surya Kumar Yadav from grade C to B. Shubman Gill from C to B. Now, when we talk about this, the biggest losers are KL Rahul, who has been demoted from grade A to B, Shardul Thakur from grade B to C. And of course, the big names are all in the A plus category. Now, let's begin with this gradation system. Yes, Ravindra Jadeja has been, obviously, he's the main guy who's gone up by several notches. And if we take a quick look at just some of his basic stats, he picked up 22 wickets in 8 innings in the Border Gavaskar Trophy. He also scored 135 runs in 5 innings. And in the 3 matches against Australia and the ODIs, Jadeja scored 79 runs and picked up 2 wickets in 3 matches. Please remember, he came back after a long time after a surgery. So for him to come back so quickly, doing well in the Ranji Trophy match, and then performing so well for India. So what are your opening thoughts, yes? I think Jadeja thoroughly deserved to be elevated in this particular contract system. Definitely, what you have mentioned the stats, but also he's the biggest match winner in last 1.5 years. Yes, in between he was injured, he was not playing for India, but most of the times, whether it was outside India or within India, he was your guy always for your captain. Whenever you needed runs, and especially when we talk about the all-rounders, he's the best all-rounder in that particular slot, and because of his ability to strike hard, and also strike very decisively whenever he is needed. And especially don't forget that there were a couple of times when entire Indian batting collapsed, and he or along with him sometimes Hardik Pandya, or mostly Ashwin, who is another. I won't count him in the all-rounder slot, but again, they are the they are the couple that who has saved India so many times. But I'm greatly surprised with one particular person, which obviously you should have also you'll be mentioning, that is non-inclusion of Umran Malik, your biggest hope. You're probably the fastest bowler in India, and who has not been given any kind of contract, whether it is C, D, whatever category. Let's look at the two other names. सबसे पहले हार्दिक पांड्या और उसके बाद अक्षर पटेल. अब हार्दिक पांड्या भी एक सर्जरी के बाद वापस लौटे हैं और उन्होंने शानदार काम किया है और उन्होंने पिछला आईपीएल टाइटल भी जीता नई टीम के साथ, गुजरात टाइटंस. अब आईपीएल भी शुरू हो रहा है तो जाहिर है वो जिक्र होगा. लेकिन सबसे अच्छी बात जो लगी इस बार उनको देख के कि वो अपने पीक फॉर्म पे हैं. करीब 135 to 140 क्लिक्स पे वो बॉलिंग कर रहे थे. उनकी फील्डिंग माशाल्लाह बेहतरीन है. एज अ बैट्समैन वन ऑफ द फाइनेस्ट हिटर्स इन द गेम. सो इट इज अ जस्टिफाइबल प्रमोशन. Arup, you have to understand that Indian selectors, whether it's BCCI or selectors, and especially these entire contracts are probably been finalized by none other than Rahul Dravid. मुझे लगता है उनका काफी इसमें रोल रहा है, क्योंकि आपके चीफ सेलेक्टर तो सैक हो गए हुए हैं. रादर एक बार नहीं 2 बार सैक हुए.
और उसके बिना जो जो उनके अलावा जो चीफ सिलेक्टर का रोल है, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट अभी शायद आईपीएल के बाद होगा। सो देयर इज अनदर 2 मंथ्स और सो, आईपीएल होगा, उसके बाद वो एडवर्टाइजमेंट होगा और तब उसकी जो है कि वहां पर किसी व्यक्ति को बिठाया जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स एसेंशियली या तो जयशा के चॉइस है या राहुल द्रविड़ की है। एंड मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि आपने बिल्कुल जो कहते हैं कि बिल्कुल पिन पॉइंट कर दिया कि हार्दिक पांड्या आपका व्हाइट बॉल का कप्तान होगा आने वाले दिनों में। रोहित शर्मा, अगर वर्ल्ड कप में हम बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छे से मतलब हम सेमीफाइनल ऑनवर्ड्स गए, तो हो सकता है कुछ एक उनको और टूर्नामेंट्स मिल जाए एज ए कैप्टन। बट ओवरऑल आई थिंक दिस वर्ल्ड कप could be very decisive for Rohit Sharma as a captain, and he could be part of your test team, but not in the one day or probably T20. So Hardik Pandya मेरा आपका बिग प्रश्न है ओडीआई वर्ल्ड कप की तरफ, और दर्शकों को हम ये भी याद दिला दें कि 2011 के बाद जब हम लोग मुंबई में वर्ल्ड कप जीते थे ओडीआई एमएस धोनी की कप्तानी के अंडर, उसके बाद बिल्कुल मैदान साफ रहा है, हम कुछ नहीं जीत पाए। और उससे पहले जो एक और आईसीसी ट्रॉफी है वो भी धोनी की ही कप्तानी में हुआ था 2007 में, T20 वर्ल्ड कप in Johannesburg, and that was again under Dhoni. So there are many of the successive captains who would want that kind of trophy on the table, and so Virat Kohli was unable to do that. Now it is Rohit Sharma's turn. But let me now jump across to Akshar Patel. He's a strange combination of a bowler and a batsman. And the way he batted in the Border Gavaskar Trophy, there were at least two, I would say, match-winning knocks or match-saving knocks, whichever way you want to take it. When we were really on the ropes, it is Akshar Patel who came. But his primary job is not to bat. He's supposed to be a frontline bowler. But listening to Murli Kartik, उन्होंने कहा कि ये उस टाइप का बॉलर है जो पिच को यूज करता है। अगर पिच इसको हेल्प कर रही है तो ये और लीथल हो जाएंगे, क्रमलिंग पिच या बाउंसी पिच। लेकिन इनका मेन रोल है कंटेनमेंट। तो ये जो इनाम मिला है सीएस, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं जितनी भी आप बात कर रहे हैं, जितने भी मैं बात कर रहा हूँ, एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि हमारा फोकस पॉइंट क्या है। हमारा फोकस पॉइंट कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप है, क्योंकि सबसे बड़ी ट्रॉफी इस साल में आपको वही खेलनी है। आप आईपीएल के लिए इन लड़कों को फोकस नहीं कर रहे, वो तो जो फ्रेंचाइज टीम्स है उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया किसको क्या करवाना है। इनफैक्ट नीतीश राणा को कल ही न्यूज आई थी कि उनको केकेआर ने कप्तान बनाया। दिल्ली के कप्तान नहीं है, कहीं के कप्तान नहीं है, लेकिन वो एक अलग स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन अक्षर पटेल जब आप करते हैं तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आई गो विद मुरली कार्तिक कि अक्षर पटेल कोई ऐसा नहीं है कि नए प्लेयर है। मैंने अक्षर पटेल को बहुत पहले खेलते हुए देखा था डोमेस्टिक में। ही इज ऑलवेज बिन देयर फॉर लास्ट, जैसे उनाटकट है, पेस बॉलर है लेफ्ट आर्म, वैसे अक्षर पटेल है जो पिछले 10, 12, 15 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको चांसेस नहीं मिले या डोमेस्टिक में उन्होंने बड़ा कमाल किया हो। लेकिन अक्षर पटेल को अगर आप एज ए बैट्समैन हु कुड ऑल्सो लिटिल बिट बोल, अगर इस कैटेगरी में रखेंगे तो मैं मान लेता हूँ कि वो आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में बनेंगे। तो फिर किस बैट्समैन को आप दरकिनार करेंगे, किसको हटाएंगे उनकी जगह? अक्षर पटेल को यहाँ पर रखना, दैट मीन आप अपनी स्कीम ऑफ 26 लोगों को आपने रखा ओवरऑल, तो 26 में से करीब 18 आपके शॉर्टलिस्ट होंगे वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर अक्षर पटेल को आप रखते हैं तो किसी बैट्समैन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ही कैन नॉट बी योर मेन बॉलर। आपको ये समझना ही पड़ेगा, अक्षर पटेल उस तरह का उनका कभी भी रोल नहीं रहा है, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, कि उनको एज ए प्योरली बॉलर खिलाया जा सकते हैं। और वो ऑलराउंडर की कैटेगरी में भी मैं उनको हर एक, चाहे रविंद्र जडेजा हो, इनफैक्ट मैं अश्विन को उनसे ज्यादा ऊपर रखूंगा, जिसको मैं बैट्समैन नहीं मानता। लेकिन अक्षर पटेल एज ए बैट्समैन ऑलराउंडर के स्लॉट में आएंगे, लेकिन उसमें आपको बैट्समैन को हटाना पड़ेगा। लेकिन अभी जो दौर है ना, मैंने कहा ये जयशा की टीम है या राहुल द्रविड़ की टीम है, तो ये जयशा के कोटे में है। तो इनको रखने का एक बहुत सिंपल सा है कि उस रीजन को बिलोंग करते हैं, वहां के कुछ एक लोग बहुत डिसाइसिव इस टाइम रोल प्ले कर रहे हैं, और चीफ सेलेक्टर आपको जैसे मालूम था वो कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हुए सैक हो गए। तो इसमें जो रोल है अक्षर पटेल का, बढ़ा तो दिया इन्होंने, लेकिन एक 2015 का अगर आपको वर्ल्ड कप याद हो, अरूप पीछे ले जाना चाहूंगा, जब धोनी को लग रहा था दोबारा हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं 2011 की सक्सेस के बाद, तो एक बॉलर जो बहुत डिसाइसिव हुआ था वो थे मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी को उन्होंने इंजेक्शन लगवा कर, जो कॉर्टेस क्या इंजेक्शन होते हैं उनको घुटने में लगा कर उनको खिलाया था।
और उसकी वजह से और कुछ एक और जैसे एक दो प्लेयर थे, युवराज सिंह थे, जिनको बहुत ज्यादा बैक किया था और वो बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे, और उस वजह से टीम इंडिया सेमीफाइनल तक नहीं जा पाई थी। और यही मुझे इस बार की प्रॉब्लम लग रही है कि हम होम एडवांटेज लेंगे, हम हर एक चीज करेंगे, हमारे साथ पूरा क्राउड होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपने कुछ एक हॉस्पिटल से सीधा निकाल करके कुछ प्लेयरों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें आपके मोहम्मद शमी इस टाइम पे फिट लग रहे हैं, लेकिन वो टूटते बहुत जल्दी है, ये मत भूलिएगा। और दूसरा, मैंने कहा ना, उमरान मलिक जैसे यंग प्लेयर को आप स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं रख रहे हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह जो आपके नंबर 1 बॉलर है, वर्ल्ड के वो नंबर 1 है, वो इतने लंबे टाइम से इंजर्ड चल रहा है कि उनका भी मुझे खुद डाउटफुल लग रहा है कि वो जब आएंगे कितनी देर और खेलेंगे। क्योंकि जसप्रीत बुमराह जिस दिन खेलना शुरू हुए थे, मुझे याद है हर एक व्यक्ति ने जो क्रिकेट की समझ रखते हैं, उन्होंने कहा था इनका इरेटिक एक्शन, इनका जो डिसेप्टिव एक्शन है, इसकी वजह से इनको बहुत सी इंजरीज होगी। खैर इतने साल खेले, बहुत अच्छा भी खेले, लेकिन अब उस इंजरी को रोक पाना वर्ल्ड कप तक आसान नहीं होगा, क्योंकि दोबारा आएंगे, फिर से कुछ खेल लेंगे, और खासकर आईपीएल जरूर खेलना चाहेंगे, क्योंकि आईपीएल ही तो सबसे ज्यादा दुधारू गाय है आपकी, मनी स्पिनर वही है। तो उसमें फिर से क्या होगा उनका, या उस लिहाज से एक प्लेयर को आपने जबरदस्ती रखा है, जो मैं मानता हूँ कि शायद पैसा उसको जरूरत भी है, वो है ऋषभ पंत। वो इंजर्ड हैं, वो वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स में ही नहीं आ सकते, तो प्रैक्टिकली आपको 25 लोगों में से इनको चूज करना है। तो ऐसे कई प्लेयर है जो हॉस्पिटल से निकल के, एनसीए को मैं हॉस्पिटल इसीलिए बोलता हूँ कि एनसीए से निकलकर वो सीधा टीम में आएंगे, और उसके बाद बहुत कम वक्त होगा उन पर एक्सपेरिमेंट करने का, उन पर रिलाई करने का। और इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है कि हम 2015 की गलतियां 2023 में भी दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। Okay, let's take a quick look at Surya Kumar Yadav, the boy wonder of T20, 300s and T20, and a magnificent batsman in that circuit. The commentators were going berserk talking about him, praising him to the skies. Everyone loved the way he batted. They said he's the new AB de Villiers, 360 degrees. He became, from Surya Kumar Yadav, he became Sky, and then 3 ducks in a row in ODIs. And from Surya Kumar Yadav, वो बन गए शून्य कुमार यादव। अब उनके नाम को पे लेके लोग वहां पे हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। It just showed how fickle the audiences are. But and you're absolutely right that this is a step towards the next ODI World Cup, which is in October, November in India. And so, is Sky the right choice then? I think he's the best choice. You have to back him. You have to, you have to back your players whom you have been backing for so long, number one, and also who has delivered, whether it was T20 or something. But T20 and World Cup, or one day cricket, you have to understand there is hardly any difference in tour. Right now the approach, whether it's Indian team or the teams all around, their approach is very simple. You have you have to apply your tactics as per the T20 games. It is no longer a one day where 280 or 290 kind of score is safe. In one day cricket, if you have seen in the last couple of years, I think even 325 is not a safe score right now. So keeping in mind that, and also keeping in mind that kind of improvisation, the kind of strokes that whether it was AB de Villiers or now Sky, who is termed as the next AB de Villiers, they play. He comes very handy for any particular team. But only thing is whether you have that kind of patience to back him, or whether you are going to run out of patience before the World Cup. But if I am a captain, if I am a coach, I would definitely back him at least 9-10 innings. You have to give it to him before the World Cup. He's a guy who has delivered, and he is the guy who has that magnificent touch. If you see, I think amongst all the batters in the team, whether it's Virat Kohli or Rohit Sharma or anybody, nobody could actually match the kind of improvisations that Sky offers to Team India. So he's a great talent for that matter. But yes, you have to be a little bit wary. Maybe you can, in between you can try other players like Ishan Kishan. But Ishan Kishan is good as a opener. He is also a great improviser. He is also a great, strike player. लेकिन ईशान किशन की प्रॉब्लम यह है कि वो उसको जब भी मिडिल ऑर्डर में खिलाते हैं, he is not the same kind of striker. स्काई के साथ अच्छाई है कि नंबर 3 से लेकर नंबर 7 तक कहीं पर भी एडजस्ट हो जाते हैं.
हाँ, 3 डक्स लगे, गोल्डन डक्स इवन आई वाज़ वेरी सरप्राइज्ड। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि वो स्कीम ऑफ थिंग्स में रहना चाहिए और नए लड़कों के साथ जहाँ जहाँ शुभमन गिल, जहाँ ईशान किशन ये सब या श्रेयस अय्यर फॉर दैट मैटर, ही वाज़ ए पोटेंशियल कप्तान 1 साल पहले तक, लेकिन इस टाइम पे थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इन प्लेयर्स के साथ एक मैच्योर माइंड और वो मैच्योर माइंड जो फ्रंट से लीड करे, मुझे लगता है स्काई उसमें एक अच्छी ऑप्शन है और उनके साथ ओके, गुड लक टू बिल्कुल स्काई। स्टिक। अब आते हैं कुछ जुमलों पे। ये जुमलों का जमाना है और वो बेस्ट है कि हिंदी में ही कहा जाए। तो वेट लिस्ट पे जो हैं वो कहते होंगे कि अपना टाइम आएगा, और जिन्हें बाहर कर दिया गया वो या डिमोट कर दिया गया वो सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ। और जो ए प्लस कैटेगरी है वो तो शहनशाह हैं, और जहां तक ए कैटेगरी या जो प्रमोट हुए हैं उनके लिए तो वो फिल्म का टाइटल ही बहुत बढ़िया है कि जो जीता वो सिकंदर। लेकिन यहाँ मैं बात करना चाहूंगा उस कैटेगरी की जो ये गा रहे होंगे कि ये क्या हुआ, और उसमें 2 नाम है, केएल राहुल और शार्दुल ठाकुर। क्या कहेंगे सीएफ्स? देखिए, केएल राहुल इज अ काइंड ऑफ प्लेयर। अगर आप ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद, इंग्लैंड टूर के बाद ये कहते हैं कि केएल राहुल, तो मैं सीधा कहता कि कप्तान मटेरियल है। इज अ वेरी मैच्योर हेडेड गाय। उनका क्रिकेट खेलने का स्टाइल, उनको जिस तरह से अप्रोच करते हैं वो किसी भी क्रिकेट को, टेस्ट क्रिकेट हो या कोई और, वो एक कॉन्फिडेंस आपकी टीम को देते हैं। वो टेक्निकली बहुत करेक्ट है। उनकी जो प्रॉब्लम मुझे चल रही है कि बहुत कुछ उनकी लाइफ में हो रहा था, अगर पिछले दिन कुछ आप देखें, एक तो ये मीडिया एक्सपोजर भी इतना जबरदस्त हो जाता है कि आपको एयरपोर्ट से लेकर हर जगह चेस करना शुरू करते हैं। आप नए कप्तान हैं, आप आने वाले दिनों के सबसे बड़े प्लेयर हैं। कहीं ना कहीं देखिए, कितना भी मैच्योर माइंड हो, वो थोड़ा हिलना शुरू हो जाता है। केएल राहुल के साथ सब कुछ हुआ, शादी हो रही है, एक सेलिब्रिटी स्टेटस बन गया है, और सेलिब्रिटी एक फिल्म स्टार के साथ मैरिज हो रही है। आप इंडिया के नंबर 1 ऑलमोस्ट प्लेयर बन गए हैं। आप कप्तान जैसे भी इंजर्ड होता है तो केएल राहुल ही हमेशा वाइस कप्तानी आपको करते हुए दिखते हैं। ये सब कुछ ऐसा हुआ है, कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट हुए। उनकी टेक्निक में आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि he is better equipped to handle all kind of bowlers, even more than your captain or Virat Kohli technically, if talking about. But उनके साथ ये distractions को अगर खत्म करें, शायद उनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा अपनी appearances को भी। जैसे वर्ल्ड कप का टाइम है तो शायद T20 और ओडीआई में ज्यादा अपनी अपीयरेंसेस हो, तो शायद बेटर होगा, अपने आप को ज्यादा अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। बट ओवरऑल आई थिंक, इफ यू आस्क मी, मुझे लगता है कि फर्स्ट 18 तो क्या, फर्स्ट 15 की भी जो टीम में वर्ल्ड कप की, वो डिजर्व करते हैं। लेकिन टू टू मच ए टाइम इन बिटवीन, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि केएल राहुल की जिंदगी में शायद डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और उनका ध्यान भटक रहा होगा। लेकिन मैच्योर प्लेयर भी हैं और ज्यादा वक्त नहीं लगेगा उन्हें अपनी वापस फोकस लाने में, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि जब वो उनके शुरुआती दिन थे तो उनका एक स्ट्रेट कंपैरिजन हुआ था कि राहुल द्रविड़ एके द वॉल की जगह अगर कोई ले सकता है वो केएल राहुल है। तो समय इतनी जल्दी नहीं बदल सकता। Okay, let's move on to people who have actually been dropped or lost their contracts, because that tells a very important story. So let me go through that list quickly. Bhuvaneshwar Kumar, Mayank Agarwal, Hanuma Vihari, Riddhiman Saha, and Deepak Chahar. Now, before I come to you, CS, Bhuvaneshwar Kumar is understandable. He may not be the bowler he used to be. Mayank Agarwal is a bit of a surprise because technically proficient batsman as an opener. He was really being celebrated. Now, boom, he's out. Hanuma Vihari, the man who showed so much of grit and courage in Australia, batting with a busted hamstring with Rane and saving the match for India and doing so well. Again, in a Ranji Trophy match as Andhra Pradesh captain, he batted with one hand while one of his wrists was broken. Now, if that is not bravery, if that is not courage, what is? He's out. Riddhiman Saha, possibly in my book, still technically the wicket keeper in India, but may not be a great batsman, so he's gone. So, what are your views now? देखिए, बच्चा मोस्टली 99.99% वही बनता है जो माँ बाप उसके लिए एक माहौल पैदा करते हैं। यहाँ पर माहौल, जो क्रिकेट का जो मुझे लगता है जो फोकस है, हमारे जय शाह हो या बाकी के, रोजर बिन्नी तो खैर बोलते नहीं, पहले वाले सौरव गांगुली ज्यादा बोलते थे, थोड़ा लीक करते थे स्टोरीज, तो उनको साइड कर दिया गया। तो मुझे लगता है जो फोकस जो है माँ बाप का, वो बिल्कुल प्योरली व्हाइट बॉल क्रिकेट पर है। खासकर कॉन्ट्रैक्ट्स को देखकर ये लगता है, वरना कोई रीजन नहीं है कि आप 26 लोगों में से मैं आपको इनफैक्ट पिक कर सकता हूँ।
कि जिस तरह ऋषभ पंत को मैंने कहा और तरह से ही आप सपोर्ट कर सकते हैं अगर वो स्कीम ऑफ थिंग्स में नेक्स्ट 6 मंथ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो 6-8 महीने चलने हैं, ज्यादा तो चलेंगे नहीं ये क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हैं अगर चाहे तो बीसीसीआई। तो उसमें शिखर धवन को रखने का कोई लॉजिक नहीं था। शिखर धवन को आप किस बेसिस पे रख रहे हैं? वो आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में टेस्ट में नहीं आते, वनडे से बाहर हो गए, इंडिया ए को लीड करते हैं। इंडिया ए के प्लेयर्स को आप कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं रख सकते अनलेस एंड अनटिल कहीं से कोई ग्रेट दिमाग में किसी के आ रहा हो कि वर्ल्ड कप में शायद कोई टूटने वाला हो और उसकी जगह इसको मैच्योर शिखर को रखना चाहे, अदरवाइज वो बाहर हो सकते हैं। उनकी जगह पर आप रिवॉर्ड कर सकते थे वो प्लेयर जो आपको टेस्ट के लिए अच्छे हैं। आप टेस्ट में आपने चेतेश्वर पुजारा को पहले दिखा दिया कि आप कितने भी मैचेस हमें जिताइए, आप कितना भी हमें बचाइए, पर हम आपको ये ए और ए प्लस ग्रेड में नहीं आने देंगे। आप नीचे रहिए, आपकी औकात उतनी है। मैं औकात इसलिए वर्ड बहुत सोच समझ के यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपके जो सबसे अच्छे टेक्निकली इक्विप्ड प्लेयर हैं, जिन्होंने आपको शर्मिंदा होने से कई जगह पे बचाया है, ऐसी ऐसी जगहों पे जब बाकी के प्लेयर बिल्कुल जो कहते हैं ना पिच से भागना शुरू करते हैं, वो खड़े रहते हैं आपको, उन प्लेयरों को आप क्या सम्मान दे रहे हैं? कुछ सम्मान नहीं। क्या 3 करोड़ की जगह के 7 करोड़ बीसीसीआई नहीं दे सकती? बीसीसीआई के पास तो पैसा ही पैसा है, 50,000 करोड़ की कंपनी है, उस पर कुछ लोगों ने कब्जा भी कर रखा है। लेकिन पॉइंट इज फोकस माँ बाप का, जो मैं कह रहा था, फोकस ये है कि जो अच्छा प्लेयर होगा, जो टेक्निकली बहुत इक्विप्ड होगा, उसके लिए ज्यादा जगह नहीं है। तो मयंक अग्रवाल और हनुमा विहारी को मैं ठीक उस स्लॉट में रखता हूँ जहां पर आपका फोकस बिल्कुल आउट है टेस्ट क्रिकेट से, और आप सबको एक तरह से एक ही जामे में पहनाना चाहते हो कि आपको व्हाइट बॉल क्रिकेट या आपको ये T20 के लिए जो सो कॉल्ड तमाशा क्रिकेट है, इसमें आपको एक्सेल करना है। सो आई एम सरप्राइज। लेकिन एक और प्लेयर जिसने थोड़ा सा सरप्राइज मुझे किया है, वो है दीपक चाहर। दीप भुवनेश्वर मैं कहूंगा बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे, मुझे भी लग रहा था कि शायद उन पर गाज गिरेगी, लेकिन इतना खराब भी नहीं कर रहे थे कि हमारे बाकी के कई बॉलर्स जो अगर आप कहे कि उनकी जगह नहीं रखा जा सकता था। लेकिन एनीवे उनका टाइम उन्होंने काफी खेल भी लिया। लेकिन दीपक चाहर आपके स्विंग बॉलर अच्छे हैं अनलेस एंड अनटिल, क्योंकि बीसीसीआई अब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती रात को 10 बजकर कुछ मिनट पे कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस करते हैं जिससे कोई क्वेश्चन ना पूछा जा सके। तो ऐसे में दीपक चाहर को ना रखना, अगर वो पूरी तरह इंजर्ड है और आपने उनको साइड लाइन कर दिया वर्ल्ड कप तक, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो भी हॉस्पिटल में है, लेकिन उनकी इंजरी इतनी सीरियस नहीं थी और वो आपके बेस्ट स्विंग बॉलर हैं आफ्टर भुवनेश्वर कुमार। वो कई पिचेस पर इंडिया में खासकर वानखेड़े अगर आपको खेलना हो, कहीं भी ऐसी जगह जहां पर बॉल काफी मूव होता है, वो आपका फर्स्ट चॉइस थे। और कितने अच्छे वो बॉलर थे, वो धोनी से पूछिए, जिन्होंने सीएसके में उनको कमाल का यूज किया और इसलिए वो टीम इंडिया में आए। तो ऐसे से कई ऐसे नाम आपको दिखेंगे जिन पर फोकस नहीं दिया गया है। और क्यों नहीं दिया गया, इसका बेस्ट आंसर तो खैर कोई करेगा नहीं, लेकिन अगर कभी मिले तो उनसे जरूर ये पूछना चाहेंगे कि ये इसके पीछे लॉजिक क्या है। इसका आप टेस्ट क्रिकेट को अबेंडन करना चाहते हैं, आप उनको अनाथ करना चाहते हैं, और टेस्ट क्रिकेट के अगर आप प्योर प्लेयर्स इसमें देखें तो मुझे नहीं लगता कि अपार्ट फ्रॉम चेतेश्वर पुजारा कोई और ऐसा प्लेयर है। सभी ऑलराउंडर्स और सभी उस तरह के टिट्स एंड बिट्स वाले प्लेयरों को भर दिया गया है। Okay, let's take a quick look at two more important players. One is Ishant. Understandably, his best time is over. He's played 105 test matches, 311 wickets in those test matches. He's played 80 ODIs and 115 wickets. Now, about him, CS, there was an interesting observation made by Glenn McGrath, and he said that towards the second half of his career, he said he wasn't pitching the ball on the seam, and since he did not also have the speed by then, on pitches that were a bit flat, he was bowling constantly short, and in the hope that he would target the batsman's body, but he was getting pulled or hooked all the time. And the second bit was that since the ball wasn't moving, anything which was pitched up would be driven. So that was his advice. What do you have to say about Ishant? Is it goodbye? Yes, certainly, most certainly goodbye, but little bit late, I would say, क्योंकि ईशांत का जो बेस्ट टाइम था ईशांत शर्मा का, वो बेस्ट टाइम शायद 2015 से भी पहले था। उनका अगर उनका भी करियर देखें तो शुरू में जब वो ऑस्ट्रेलिया के लिए गए थे और जब उन्होंने रिकी पॉन्टिंग को 2007-8 सीरीज में हिला करके रख दिया था विद शॉर्ट पिच डिलीवरी, आई थिंक दैट फेज वाज ओनली लास्टेड फॉर 3-4 इयर्स। उसके बाद से वही दिमाग जिस तरह से आपका होता है पेस बॉलर्स, खासकर विद द हाइट ऑफ ईशांत शर्मा, उनको लगा कि मैं सबको जो डेनिस लिली या उस तरह का करना शुरू कर देगा और सीम को छोड़कर
उन्होंने बॉल को जो आलू की तरह जब आप पकड़ते हैं ना, और जब क्रॉस से, उन्होंने वो सब T20 और वो इम्प्रोवाइजेशन जो बॉलर्स की लाइफ में आए, उससे वो खराब हो गए। ही वाज नेवर बीन योर नंबर वन विकेट टेकर। और इनफैक्ट इन बिटवीन तो मैंने कई बार लिखा भी था, जिसपे कुछ एक लोगों को प्रॉब्लम भी थी। मैं हमेशा कहा था ईशांत शर्मा इंडियन टीम के कछुआ हैं, जो रेस दौड़ सकते हैं, लेकिन वो खरगोश की तरह कभी भी तेज नहीं दौड़ सकते। उनकी विकेट टेकिंग एबिलिटीज वैसी थी। तो मेरे को कोई शक नहीं है कि उनका करियर ओवर है, और शायद ओवर फॉर गुड। और उनकी जगह अगर नहीं लिया है उमरान मलिक को, जो हो सकते रहो, लेकिन उनको आप सी ग्रेड में रख करके थोड़ा बहुत 1-आधा करोड़ तो दे सकते थे, जिससे कॉन्फिडेंस आता, टीम के साथ चलते। आपने वो ना कर करके मुझे थोड़ा सा लगता है डिसअपॉइंट किया, बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। एक और नाम से थोड़ी बहुत हैरानगी होती है, वो है अजिंक्य रहाणे। नाउ अब दिसंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान जब विराट कोहली वापस आ गए और उन्होंने बाकी 3 टेस्ट मैचेस में कप्तानी की, खुद सेकंड टेस्ट में रहाणे ने 112 रन बनाए एंड सेकंड इनिंग्स में 27 नॉट आउट। And also, after drawing the third test at Sydney, India went on to win the fourth test in Brisbane and handed Australia their first defeat at the Gabba in 32 years. All of this was done under Ajinkya Rahane's captaincy. He was being praised. He was being praised to the skies. Do you think that since his batting possibly lacked consistency, he has paid a price? How can a man who is so good at a point decline so quickly? एब्सोल्युटली रबिश। आरोप, आपने एक ऐसा तार छेड़ा ये अजिंक्य रहाणे का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको गुस्सा दिखेगा। अजिंक्य रहाणे, अगर आप मुझसे पूछें, तो वो रोहित शर्मा से पहले आपके फुल टाइम कैप्टन होने चाहिए थे। इनफैक्ट कई कहीं पहले, जब विराट अच्छा नहीं कर रहे थे, उनको लॉन्ग रोप दी जा रही थी। आप कंपैरिजन कीजिए, एक तरफ विराट कोहली है, 3-3.5 साल कोई सेंचुरी नहीं करेंगे, रन अच्छे नहीं करेंगे, उनको पूरी तरह बैकिंग मिलेगी। एक तरफ अजिंक्य रहाणे, जो एक बहुत अच्छे क्रिकेटिंग माइंड है, जिनकी फील्ड प्लेसमेंट आज तक शायद कोई नहीं कर पा रहा। उनका जो अटैकिंग स्टाइल था, जो कहते हैं ना, एक शोर मचाने वाले विकेट पे जाकर और शोर मचाने वाले विराट कोहली जैसे, उनको आप बोलते हैं एग्रेसिव कप्तान। मुझे तो कभी एग्रेसिव नहीं लगे, उनकी फील्ड प्लेसमेंट तो इतनी डिफेंसिव थी। और एक तरफ अजिंक्य रहाणे, जो चुपचाप रहे, और उन्होंने पहला मैच ही जब उन्होंने धर्मशाला में कैप्टन किया था अगेंस्ट इंग्लैंड, आई रिमेम्बर, उस टाइम पे उन्होंने कोई शोर नहीं, कुछ नहीं, आराम से जीत करके आ गए। और फील्ड प्लेसमेंट इतनी कमाल की अटैकिंग थी, बॉलिंग चेंजेस उस तरह के इनोवेटिव थे, जहां पर आपकी टीम को लगा कि एक बहुत अच्छा लीडर आपको मिल रहा है। अब प्रॉब्लम उनके साथ कहाँ आई? टीम में हर एक जगह पे मुझे लगता है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग मे बी बोर्ड की भी हो या नहीं, लेकिन टीम मैनेजमेंट की जरूरत है। अजिंक्य रहाणे को बहुत जल्दी, इफ यू रिमेंबर दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टर 2015 वर्ल्ड कप, जब ये लग रहा था कि धोनी की जगह हो सकता है अजिंक्य को भी देख सकते हैं, और अजिंक्य बहुत अच्छा कर रहे थे, खासकर ओवरसीज टूर्स पे, वो आपके नंबर 1 बैट्समैन थे उस वक्त पे। धोनी ने, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट ईयर, लेकिन 2016-17 के आसपास धोनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उनसे पूछा कि अजिंक्य को क्यों आप ठीक से नहीं खिला रहे, उनको क्यों नहीं यूज कर रहे, कि इज ए स्लो रोटेटर ऑफ द स्ट्राइक, इन बिटवीन वो स्लो खेलते हैं। कभी कहीं समझ नहीं आया था। आई वॉज देयर इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने एनालाइज भी किया, मुझे लगा कहाँ पर स्लो किए, अच्छे रन कर रहे सब कुछ, लेकिन एक उनके साथ ना जो चिपकाना शुरू कर देते हैं, उनके साथ एक लेवल चिपकाना शुरू कर दिया कि आपकी प्रॉब्लम है, आप टीम में पूरी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है, और आपके कुछ एक टेक्निकली ही वाज मोर इक्विप्ड देन मोस्ट ऑफ आवर बैट्समैन। अगर आप केएल राहुल की कैटेगरी में अगर पुराने प्लेयर्स को रखे, तो एक अजिंक्य रहाणे भी थे। He was more capable in playing in swinging conditions, in on seaming pitches. लेकिन उनके साथ वो स्टिग्मा चिपकाना शुरू कर दिया, ही स्लो, वो रोटेट नहीं करते स्ट्राइक, वो इस तरह। और धीरे धीरे कप्तानी फिर भी अच्छी की, ब्रिस्बेन में 32 साल का जो उनका फोर्ट था ऑस्ट्रेलिया का, उसको ढा दिया। लेकिन उसको उनको रिवॉर्ड क्या मिला? रिवॉर्ड वही कि विराट कोहली को आप बैक करेंगे, रोहित शर्मा कुछ भी हो जाएगा उनको बैक भी करेंगे, ग्रेटेस्ट ऑफ वो बना देंगे। वो चाहे टेस्ट क्रिकेट में कुछ नहीं कर रहे थे उस वक्त तक। ध्यान रखिएगा, रोहित शर्मा के जो बेस्ट ऑफ टेस्ट क्रिकेट है वो पिछले कुछ वक्त में आया, जब से कप्तान बने। उससे पहले ही वाज अ फ्लॉप एज ए बैट्समैन इन टेस्ट क्रिकेट। लेकिन आपने उनको बनाना था, उनको बनाया, और इनको बिगाड़ना था, बिगाड़ दिया। आज वो बाहर है, मुंबई की कप्तानी कर रहे थे, कितने दिन खेलेंगे मुझे नहीं मालूम। लेकिन आई थिंक इंडिया की कभी बिगेस्ट ट्रेजेडी जो स्टोरीज लिखी जाएगी, वो उसमें एक इनका नाम भी आएगा, जिनको शायद शैबिली ट्रीट किया गया।
Let's talk about the new additions. Ishan Kishan, you have touched upon that. Deepak Hooda, Kuldeep Yadav, Sanju Samson, Arshdeep Singh, KS Bharat. Now, CS, among these names, Ishan Kishan, you've already touched upon, so we won't go back in there again. Kuldeep Yadav has had a pretty rough time, and he was out of the team for quite some time. Now he's back. He's again, I heard Murli Karthik analyzing him quite brilliantly and saying that he's injected speed in his deliveries, which foxes the batsman, and he's also developed a straight one. Sanju Samson is again a mystery to me. Possibly, like you said, he and Shikhar are back because of injuries to Shreyas and Rishabh Pant. But he's a mystery in the sense that he was praised sky high by so many during the IPL, but unable to have performed for India. Arshdeep Singh is again a strange oddball bowler whom, while good luck to the young man, but in my mind's eye, he's been making too many mistakes too often, and this might cost India badly. KS Bharat, the wicketkeeper, we saw him recently. Technically, may not be all that great because he was dropping quite a few catches. Now Rishabh Pant is not there, so he is obviously among the new additions. So let's concentrate on Kuldeep, Sanju, Arshdeep, and Bharat. You have to understand that Indian team management have already decided that in the longer format, KS Bharat is going to be your number one wicketkeeper, like Ridhiman Saha. He used to play, the Test cricket, and the others were, being experimented in the white ball cricket. So KS Bharat is going to stay there for next 1 year or so. So whether he's a good batsman or not, I have not seen him enough in the domestic, so I cannot comment. But he looks to be a very, very stable mind. One, he looks to be a guy with lot of patience. So let's give him little bit more chance. So before making any comments, against him. Number two, for me, I think the best wicketkeeper batsman India has right now, or for the last, I would say not 2 years, but probably 3, 4 years, is that Sanju Samson. Why he has not been tested, why he has not been, picked for Team India is something, only Rahul Dravid can, talk about. Probably he's not being liked by certain people, which is my information from the team dressing room. He's not a guy who is being favored by a lot of people or the senior guys in the board or in the team management. So that is one reason. But look at his statistics in IPL, his ability to captain any side, and his ability to also lead by example. He's a great explosive batsman, and he's a guy who could open in an innings better than probably Ishant Kishan of now. Ishant Kishan after that double century, he's a different player, obviously, because he has proved. But before that, what had happened? You were trying lot of people, but not Sanju Samson. In between, कभी बीच में मैच खिलाते थे, उसके बाद उनको फिर ड्रॉप कर देते थे. So it's a mystery. What you have used the word is a complete mystery. Why he has not been picked. And Ishan Kishan, as I have talked in the earlier part, is a man with lot of I would say aggression. But whether that aggression is needed in the entire cricket, because T20 ये सब चलता है, but in one day और टेस्ट क्रिकेट के लिए तो मुझे लगता है कि अभी पूरी तरह से वो तैयार ही नहीं है. लेकिन संजू सैमसंग आपके ऐसे प्लेयर है जिनको आप एज ए कप्तान भी ग्रूम कर सकते थे, लेकिन शायद उसके करने से बाकी प्लेयरों को या लॉबीज को प्रॉब्लम होती. तो इसलिए ये थोड़े से प्लेयर मिस्टीरियस भी हैं, थोड़ा सा इनको क्यों नहीं ठीक से खिलाया गया. आज भी उनका जो रैंकिंग है वो बहुत अच्छी नहीं है जो होनी चाहिए. एक टीम उनको बैक कर रही है, कप्तान नहीं कर रही है. तो मैं यहाँ आना चाहूंगा कि अभी जैसे आपने कहा कि उमरान मलिक जो 150 के ऊपर या आसपास फेंक सकते हैं, और कई और पेस बॉलर्स ने भी उनकी हिमायत की है. शोएब अख्तर तक ने कहा कि अभी नहीं खिलाओगे तो कब खिलाओगे, यंग मैन है. तो उसको ना कोई कॉन्ट्रैक्ट दे के आप अर्शदीप को बैक कर रहे हो, तो अर्शदीप में आपको ऐसा कौन सी चीज दिखाई देती है जो कहीं और नहीं है एक्सेप्ट फॉर द मूवमेंट? देखिए, अर्शदीप और इनको आप शायद कंपेयर नहीं कर सकते. अर्शदीप इज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर. इंडिया में लेफ्ट आर्म जहीर के बाद नहीं, मैं एग्जैक्टली वही कर रहा. अर्शदीप आफ्टर जहीर कोई भी ऐसा बॉलर नहीं आया जो आपका विकेट टेकर हो. प्रॉब्लम क्या है इंडिया में या वर्ल्ड वाइड, थोड़ा लेफ्ट आर्म का अगर जिसका इन स्विंगर हो, जो नेचुरल आता हो, तो वो विकेट टेकर होता है. तो अर्शदीप ने इन बिटवीन, अगर आप 2-3 मैचेस बीच में देखे, उन्होंने दिखाया कि वो विकेट्स भी ले रहे हैं और अच्छा भी कर रहे हैं. लेकिन उनकी स्पीड,
या उनकी जो सेहत, अगर उस तरह से कहें कि एबिलिटी जो थोड़ा और तेज निकालने की, अभी वो उनमें नहीं दिखते। ही इज ऑल्सो ए वेरी रॉ बॉलर। तो लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस है, उनमें वो एबिलिटी है, तो उनको रखना इज इम्पोर्टेंट। बट यस, यू कैन नॉट कंपेयर हिम विद उमरान मलिक। उमरान मलिक ठीक वैसे हैं। 1999, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोहाली में एक मैच था, आई रिमेम्बर, और शोएब अख्तर तब नए नए आए थे। हमने कभी सुना भी नहीं था शोएब अख्तर आए हुए थे। वसीम अकरम कप्तान थे, शाहिद आफरीदी को हम कवर करना चाहते थे, एक्सप्लोसिव प्लेयर थे। लेकिन एक प्लेयर था शोएब अख्तर जो नेट्स पे बॉल कर रहा था, और वही वेवर्ड इधर से उधर, इधर से उधर। लेकिन उनका जो रिदम था, जो फिजिक थी, और जो बोलने का स्टाइल और पटकने का, वो बिल्कुल अलग था। उनको बीच बीच में कभी खिलाते थे प्रैक्टिस मैचों में, ज्यादा उन पर ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन वही शोएब अख्तर को टीम में साथ रखते रखते 1-2 साल के बाद ही वॉज योर नंबर वन बॉलर। वो नंबर वन इन द सेंस, इन टर्म्स ऑफ पेस। वो ब्रेटली के साथ मैच करना शुरू हो गए थे। उन्होंने आपको जो क्रिकेट दिया, डिस्पाइट टेकिंग डोज इंजेक्शन, जो बाद में उन्होंने बताया उनके नीज में प्रॉब्लम थी, लेकिन देखिए 10 साल का अच्छा क्रिकेट दिया। अगर उसको वहां पर आप वेवर्ड होने के नेट्स पे, मैं उनको देख रहा था, इधर बॉल कर रहे हैं उधर, अगर शोएब आपने शोएब बाहर। के शोएब का चूंकि आप जिक्र कर रहे हैं और फैन हूं मैं शोएब अख्तर का, तो जैसे ईडन गार्डन्स पे सचिन और राहुल द्रविड़ को आउट किया था, वो एक कमाल एब्सोल्युटली, यादगार मोमेंट है। मैंने कहा ना कि ऐसे बॉलर्स को, ये जो आपके आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं ना ये बॉलर, इनको तो आपको बैक करना पड़ेगा। अगर इमरान खान ने उस वक्त से गली से ना उठाए होते वसीम अकरम और वकार यूनुस, जो छोटी क्रिकेट से, तो ये कभी वर्ल्ड चैंपियंस बनते ही ना। इंडियन प्रॉब्लम क्या है, मैंने कहा ना, ये कुछ एक लोग जो बैठे हुए डिसाइड कर रहे हैं, कोई विजन नहीं दिखा रहे। ये एक बड़ा सेट पैटर्न है, और मे बी फ्रेंचाइज वाला कनेक्शन भी बहुत ज्यादा अब आ गया हुआ है। देखिए, ये अंदर की बात है, बहुत सी चीजें ऐसी सुनने में आती है। फ्रेंचाइज वालों का कितना बड़ा रोल हो गया उनके अपने प्लेयर्स को पिक करवाना। तो उमरान मलिक उसमें कहीं सेट नहीं होते। एक कश्मीरी बॉय, उनकी कोई बैकिंग नहीं, उनको बीच में खिलाया, लगा कि ये बड़े बन सकते हैं, और उन्होंने बीच में दिखाया पोटेंशियल। अगर आप देखें सुनील गावस्कर के कई जगह कमेंट्स, या जो क्रिकेट थोड़ी सी हमने देखी उनकी इन बिटवीन, वो लग रहा था कि अगर इनको आप बैक करते रहिए, साथ रखिए, इन बेस्ट ट्रेनर्स के साथ रखिए, और इस कोचिंग में रखिए, ये प्लेयर तो धूम मचा सकता है। क्योंकि ऐसी एबिलिटी आपके किसी और बॉलर में नहीं है, स्पेशली एट ए टाइम जब जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो रहे हैं, शमी का ऑलमोस्ट फैग एंड ऑफ हिज कैरियर। जो आपके बाकी के बॉलर, जैसे हम अभी बात कर रहे थे अक्षदीप की, उनका अगर आप देखो तो एक डिफरेंट टाइप के बॉलर। आपके पास जो आउट एंड आउट पेस बॉलर है, वो कोई भी नहीं है। तो ऐसे में उनको बैक ना करना तो साफ सा दिखाते हैं कि आप रिवॉर्ड तो दूर की बात, लेकिन एक छड़ी से उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक चांस हम देंगे, और उसी में आपको वर्ल्ड चैंपियन बन जाना। आपने इधर उधर थोड़ा गए या ज्यादा स्पीड निकालने की कोशिश की, तो शायद आपको बैक नहीं करेंगे। तो ये सब समझ की बात है। ये समझ आपको वहीं ले जाएगी जो खैर, मुझे अभी इस पे शक है। मुझे लगता है कि अभी भी उमरान मलिक में वो दम है। ये कॉन्ट्रैक्ट लूज भी कर गए, लेकिन अगले साल से कोई भी थोड़ा स्टेबल माइंड, एक अच्छा चीफ सेलेक्टर आएगा। चीफ सेलेक्टर्स की भी तो प्रॉब्लम है ना। एक ऐसे चीफ सेलेक्टर्स आने शुरू हो गए आफ्टर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, कि उनकी ऐसी हिम्मत ही नहीं कि वो प्लेयरों से नजर मिला सके। कोई 10 टेस्ट खेला होता है, कोई 5 खेला होता है, कोई 20-23 खेले होते हैं, तो उनकी मर्जी ही नहीं है। उनकी 100 टेस्ट खेलने वाले से क्या बोलेंगे, या फॉर दैट मैटर जय शाह से कैसे बात करेंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम होगी कि एक स्टेचर वाला जो लास्ट आदमी आपके पास था, वो थे दिलीप वेंगसरकर। और दिलीप वेंगसरकर ने कितने लोगों का करियर बनाया, वो उठा करके देखिए, जो आज तक चल रहे हैं आपके क्रिकेट में। It's सो a वो very विजन important देने point की that you जरूरत है। made, CS. We leave it at that. And like you said, that it depends who you make the chief selector, because records do speak for themselves. I still remember Mr. Saurav Ganguly when he was at the peak of his powers and the media would question him. So he would say with that poker face of his that it depends how many tests you have played. So going by that, then फिर तो कोई किसी से सवाल ही नहीं पूछ सकता। आप किसी पॉलिटिशियन से पूछेंगे, वो पूछेगा आपने कितने लोकसभा चुनाव जीते। तो वो यू एक नो अलग। एक अरूप, एक क्विक कमेंट। बीसीसीआई बात बात पर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। आई नो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से भी ये प्रॉब्लम हुई कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उसमें इतना कम पैसा सेलेक्टर को, चीफ सेलेक्टर को करीब 1 करोड़ के आसपास मिलता है। वो इतना कम है कि कमेंट्री छोड़कर सुनील गावस्कर 6-8-10 करोड़ साल का वो छोड़ करके नहीं आएंगे। फॉर दैट मैटर रवि शास्त्री, खैर मुझे कभी नहीं लगता वो उस मटेरियल के ना कोच के थे ना यहाँ। इज ए आउट एंड आउट कमेंटेटर। लेकिन बड़े स्टेचर का
का जो व्यक्ति है वो नहीं आएगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, क्योंकि वो वहां भी पैसा नहीं कमा सकता, यहाँ भी नहीं। आपको ये पैसा इंक्रीज करना पड़ेगा। आप बात बात पे चले जाते हैं जी, मेरा टर्म खत्म हो रहा, मैं जय शाह हूं, होम मिनिस्टर का बेटा, क्या इसको बढ़ा सकते हैं? बढ़ जाता है, वो रियायत मिलती। लेकिन कभी क्रिकेटिंग रीजन से, चाहे वो सौरव गांगुली हो, जो फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर बने थे बीसीसीआई प्रेसिडेंट, उनको भी अपनी जगह बचानी थी, लेकिन कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं गया कि साहब आपके इस ऑर्डर से ये प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज इसमें रिलैक्सेशन दे दीजिए, ठीक है। और अगर रिलैक्सेशन नहीं मान ले देते तो आपका बीसीसीआई के पास, जिनके बात बात के लिए किसी को पैसा बांटने के लिए कुछ बोल देते कि ये लीजिए जी हम 5 करोड़ कर रहे हैं चीफ सेलेक्टर का, लेट्स हैव ए प्लेयर ऑफ स्टेचर, लेट्स हैव समबडी जिसको विराट कोहली भी बड़े ध्यान से देखे कि अरे ये बोल रहे मेरी औकात नहीं है कि इनके सामने जबान लड़ा सकूं। वरना मोस्टली तो कभी किसी को गाली गलौज कर देते हैं, कुंबले जैसे को भगा देते हैं, किसी को कुछ करते हैं। तो ये मैंने कहा क्रिकेटिंग रीजन से बीसीसीआई आगे नहीं जा रहा, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट से जा रहा है, और उसी को सफर हम इन चीजों में करते हुए देख रहे हैं। Okay, point noted. We'll leave it at that. We could go possibly on, and which may not be such a great idea. But like you saw, there is a lot to say, there is a lot to analyze, and there is a method behind everything that goes on. Those who have been left out would be wondering why. But there is always optimism from people who are, because India's bench strength is now fabled. They would be hoping to get a chance soon in the near future. And for them, the optimism and hope remains. And we also wish our boys the very best for the ODI World Cup, because that's the next big ticket item in this calendar year. And after 21-11, like I said, India hasn't won any ICC trophy of that stature, and all eyes would be on Rohit Sharma. Thanks for watching. As always, please send us your comments, and thank you very much, CS. See you soon. Always a pleasure. Thank you.